Good afternoon to all participants. In the morning lecture, day 6, we learn about to speed up the breeding procedures. Now, in second session, we will explore our knowledge for molecular biology tools for selecting genes of interest in desired plant, through which we shorten the breeding cycle and we get our desired plant in less timing as compared to breeding process. Our today's afternoon speaker is Dr. Deepak Raj Purohit, who is a biotechnologist and he is working as assistant professor biotechnology in All India Coordinated Research Projects at College of Technology and Engineering at Maharana Pratap University of Agriculture and Technology at Udaipur. Dr. Deepak Raj Purohit has done PhD from Department of Biotechnology, IIT Roorkee. In his PhD research, he has transferred two genes of bacterial blight resistance, that is XA21 and XA13, along with semi-dwarfing gene SD1. Four pyramidal lines with these three genes have been registered with National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi. Dr. Raj Purohit has published 29 international and national papers. He has contributed two chapters in international books and guided four MSc and two PhD students. Today, he will be delivering lecture on title pyramiding of genes for bacterial blight resistance and swamidorphism in Dehraduni basmati using marker assisted selection technique. Stay tuned with Deepak Raj Purohit sir and learn from his words. Pyramiding of genes for bacterial blight resistance and semi-dwarfing in the Dehraduni basmati using marker-assisted selection. Before giving you the lecture, I will want to introduce myself. I am Dr. Deepak Raj Purohit. I am working as Assistant Professor Biotechnology in All India Coordinated Research Projects on Post-Harvest Engineering and Technology at College of Technology and Engineering, which comes under Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur. I have taken this topic, that is pyramiding of genes for bacterial blight resistance and semi-dwarfing in Dehraduni basmati using marker-assisted selection, because this is a very important technique which is being used these days by all the agriculture universities across India for transferring the genes. This technique is very powerful technique because with the help of this technique, you can transfer 3 or 4 genes at a single time, because this is a need of hour, because what we are doing, we are transferring multiple genes at a single time. The main benefit of this technique is that when you transfer multiple genes, then the bacteria or insect against which you transfer those resistant genes is not able to break the resistance which is created in the plants due to these genes. Now, bacterial blight that is caused by a bacteria Xanthomonas oryzae is a destructive disease of rice active in the major rice growing countries of Asia. In the northern plains of India, this disease is a serious problem as the rice is grown under irrigated and high fertilizer input dose that are conducive to disease development. होता क्या है कि बैक्टीरियल ब्लाइट जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बीमारी फैली है एशिया कई जगह जहाँ पर नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, इरिगेशन ज़्यादा होता है, वहाँ डिजीज जल्दी फैलती है। तो उधर ये बीमारी क्या कहता है 40 to 50% क्रॉप्स में नुकसान कर देती है, क्रॉप्स के अंदर, राइस के अंदर। और बासमती राइस जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में पैदा होता है तराई वाले भागों में जहाँ पे पकने के दौरान टेम्परेचर कम रहता है, तो उधर भी काफ़ी नुकसान करता है। So basmati varieties which are growing in India are tall, low yielding, lodges even under low nitrogen fertilizer dose. होता क्या है कि वो बासमती की जो पौधे की लंबाई होती है जनरली 5 फीट से 6 फीट के बीच में होती है अलग अलग वेराइटीज में। जब खेत में हवा चलती है तो ये पौधा गिर जाता है क्योंकि इसका तना कमजोर होता है, और आपने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डाला तो पौधा लंबा हो जाता है, और लंबा हो गया तना कमजोर होता है तो पौधे में लॉजिंग हो जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं लॉजिंग ऑफ देहरादूनी बासमती इन द फील्ड्स।
ये सामने जो फसल खड़ी है ये देहरादूनी बासमती की है, और पीछे जो वैरायटीज है वो सेमी डॉर्फ वैरायटीज है। ये जो पिक्चर है ये CRRI की है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, और ये देहरादूनी बासमती की वैरायटी वहां लगाई गई। तो यहाँ देखा कि क्रॉप जब भी हवा चली तो तेज हवा चलने में पूरी पूरी फसल झुक जाती है खेतों में, और उसके बाद तना टूट जाता है, बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी लग जाती है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी से, और प्रोडक्शन में 40 से 50% का नुकसान हो जाता है। In addition to lodging, the traditional basmati varieties are highly susceptible to bacterial blight, thus making it a highly risk crop for farmers. इसके अलावा इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी लग जाती है, तो फार्मर्स को नुकसान है, बीमारी हो जाएगी तो उनको फसल में नुकसान हो जाएगा। So if semi-dwarfing genes and bacterial blight resistant genes are pyramided in type 3 basmati, it will increase the yield as the crop will not lodge under high fertilizer, as well it would be protected from bacterial blight. तो ये सोचा गया कि जैसे जैसे सेमी ड्वार्फिंग जीन और बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट जीन्स को पिरामिड करवाया जाएगा तो क्रॉप की लॉजिंग भी नहीं होगी, और ये बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी से भी बेसिकली प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस चीज का, कि हम चाहते हैं कि लॉजिंग नहीं और बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी भी नहीं लगे। बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी के अगेंस्ट रजिस्टेंट जीन्स किसी भी बासमती में नहीं है, ना देहरादूनी बासमती में है, ना बासमती 370 में है, ना बासमती 384 में, किसी में भी नहीं। तो देहरादूनी बासमती इज आल्सो नोन एज टाइप 3 बासमती. It is grown in Uttarakhand, Uttar Pradesh in highly priced rice in domestic as well international market. इसकी बहुत वैल्यू होती है. It possesses three important traits, that is aroma, linear elongation of cooked grains, and non-stickiness due to intermediate amylose content. These traits are quantitative in nature, and even though genes of major effect of aroma and amylose are known, combining these in a segregating population is very difficult. होता क्या है, इसमें तीन कैरेक्टर होते हैं. तो अरोमा, खुशबू. खुशबू क्यों होती है? बासमती खुशबू होती है, एक केमिकल होता है 2-acetyl-1-parylene. 2-acetyl-1-parylene हर राइस में बनता है, लेकिन बासमती में एक 8 बेस पेयर का डीएनए का पोर्शन डिलीशन होने की वजह से ये 2-acetyl-1-parylene उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है. और जब पकता है बासमती की क्रॉप जनरली नवंबर में जाके पकती है, उस वक्त राइपनिंग के टाइम टेम्परेचर ठंडा होता है, क्योंकि ये तराई वाले भागों में इसकी राइपनिंग होती है. तो उस वक्त ये जो पार्ट होता है इसका, ये 2-acetyl-1-parylene जो केमिकल होता है, ये सीड में रह जाता है, उड़ नहीं पाता एटमॉस्फेयर में. तो वो अक्यूमुलेशन जितना ज्यादा होगा 2-acetyl-1-parylene का, उतना ही ज्यादा उसमें फ्रेग्रेंस होगी. सेकंड, लीनियर एलोंगेशन फ्रेग्रेंस होता है इसमें कैरेक्टर, और नॉन स्टिकीनेस होती है. चावल कम चिपचिपा बनता है, चिपकता नहीं है, आपस में खुला खुला बनता है. तो बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट जीन्स, that is XA13 semi-dwarfing gene, are recessive and are difficult to monitor in backcross population. Mapping and tagging of genes with molecular markers have made it possible to monitor genes in segregating population at any development stage. तो XA13 और SSD1 जीन रिसेसिव है, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर आपके पास PCR बेस्ड प्राइमर हो तो उन प्राइमर की सहायता से आप इनको मॉनिटर कर सकते हैं. आप नॉर्मल क्रॉसिंग करके इनको मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन PCR बेस्ड मार्कर से यू कैन डू इजीली मॉनिटर these genes. Semi-dwarfing gene has been cloned by Spillmer et al., Mona et al., Sasaki et al., and perfect PCR marker have been developed by Ellis and Spillmer. Same are the perfect STS marker are available for bacterial blight resistant genes XA5, XA13, XA21, developed by Huang et al. In addition, a locus with major effect on aroma has been mapped on chromosome 8. So is amylose gene on chromosome 6 by Olesen and Provan in 2002. All these markers are essential for basmati-related traits and can be used for marker-assisted selection for inducing semi-dwarfism and pyramiding of bacterial blight-resistant genes in type 3 basmati without disturbing the chromatin region reported for basmati-related traits. अब what we do, we make a cross. जब भी आपको marker-assisted selection करना पड़ता है, you do cross between two plants. तो उन क्रॉसिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? बोथ द प्लांट शुड बी क्रॉसेबल. क्रॉस दोनों का होना जरूरी है. जब क्रॉस हो पाएंगे तभी उनके अंदर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन टेक्निक काम करेगी. तो हमने जो डोनर लिया दैट वाज PR1P2, एंड जो जिसमें जीन डाले थे दैट वाज टाइप 3 बासमती या देहरादूनी बासमती. हम क्या चाहते थे? PR1P2 एक प्लांट है, नॉन बासमती प्लांट है, जिसमें XA5, XA13, XA21 तीन जीन पिरामिड करवाए गए थे PAU लुधियाना में, पंजाब एग्रीकल्चर लुधियाना में.
हम ये तीनों जीन चाहते थे इस टाइप 3 बासमती में डालने के अलॉन्ग विद सेमी ड्वार्फिंग जीन, क्योंकि हम चाहते थे पौधा छोटा हो जाए सेमी ड्वार्फिंग जीन की वजह से, ताकि जब भी क्रॉप लॉन्च करे खेत लॉजिंग ना हो पाए खेत में, क्योंकि इट विल बिकम सेमी ड्वार्फ एंड वी वांट द रेजिस्टेंस कैरेक्टर टू ट्रांसफर टू द ससेप्टेबल देहरादूनी बासमती कैरिस टाइप 3। सेमी ड्वार्फ पौधा हो जाएगा तो फसल गिरेगी नहीं, और रेजिस्टेंस हो जाएगा तो बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन साथ में चाहते थे बाकी कैरेक्टर बासमती की सेंसिटिविटी, long grains, intermediate amylose content, that should remain intact, that they should not be disturbed. This is type 3 basmati or Dehraduni basmati infected with Xanthomonas oryzae strains in the field. इंडिया में 7 तरह की strains अवेलेबल थी Xanthomonas oryzae की। सारी virulent strains को मंगाया गया PAU में और क्रॉस किया गया, उन strains को बना के मिक्स किया गया, और देहरादूनी बासमती की लीफ पे जब कट किया गया तो उन strains ने उसके अंदर बीमारी कॉज करनी स्टार्ट कर दी। ये उसकी पिक्चर है। ये वो 7 स्ट्रेन्स थी जो कि मंगाई गई, जिनको ग्रो किया गया, ग्रो करके इन स्ट्रेन्स के सॉल्यूशन से बासमती के प्लांट्स को इन्फेक्ट किया गया। इंसिडेंट्स के बाद आप ये देख रहे हो बीच में जो ये जो ग्रीन लीव्स हैं, दीज आर ऑफ PR1P2 प्लांट, और जो येलो ड्राई लीफ हो चुकी हैं दीज आर ऑफ देहरादूनी बासमती या टाइप 3 प्लांट्स। इसमें क्या देखा कि जब आपने इन्फेक्ट किया पत्तियों को, तो जो प्लांट्स में बीमारी नहीं चल रही दे आर PR1P2 प्लांट्स, because they are having XA21, XA13 and XA5 gene, and these are type 3 basmati leaves, because these leaves के इन लीफ में बीमारी चल गया क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस जीन नहीं थे। तो रिसिपिएंट लाइन वाज टाइप 3 बासमती और देहरादूनी बासमती, डोनर वाज PR1P2 line that has 3 bacterial ब्लाइट रेजिस्टेंस XA5, XA13 and XA21 predominated through marker ancestor selection at PAU Ludhiana. This gene is semi-dwarf having SD1 gene also. मेटल मैन मेथड में क्या किया है, आपने प्लांट्स को लिया, उनका डीएनए आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेशन यूज सीटैप मेथड, दैट इज सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मेथड ऑफ डीएनए आइसोलेशन। वी यूज्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन बफर। डीएनए एक्सट्रैक्शन बफर में केमिकल्स जो डले होते हैं ट्रिस HCl, EDTA, बीटा मरकप्टोइथेनॉल, सोडियम क्लोराइड, सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड केमिकल यूज करके डीएनए आइसोलेट किया। आइसोलेट कर उसको प्यूरिफाई किया। प्यूरिफिकेशन के बाद उनमें RNase ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उसको क्वांटिफाई किया गया, PCR एनालिसिस की गई टू चेक द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द XA21, XA5, XA13 and semi-dwarfing gene. After that, when the polymorphism was found, the plant were crossed. Type 3 was crossed with PR1P2, you got F1. F1 was crossed with type 3, you got BC1 F1. All the plants which were heterozygous for XA13, XA21 and SD1 were selected using STS marker and back cross with type 3 to get BC2F1. Then in BC2F1 same strategy was used. Plant heterozygous for XA13, XA20 SD1 selected using STS marker and were self. तो ये क्रॉस किया गया BC2F1 में, BC1F1 में केवल हेट्रोजाइगस प्लांट सेलेक्ट किए गए ताकि आपको प्योर प्लांट्स जो कि हेट्रोजाइगस हो वो मिले। उनको सेल्फ किया गया, BC2F2 किया गया, BC2F3, BC2F4 and BC2F5. These were the details of location, crosses and generation over different years of these studies. जुलाई से नवंबर 2004 में IIT रुड़की में क्रॉस किए गए, जनवरी से मई 5 में कटक में क्रॉस किए गए, जुलाई से नवंबर 5 में रुड़की में क्रॉस, जुलाई से नवंबर 2000 में IIT रुड़की में क्रॉस, जनवरी से मई 2000 में उड़ीसा में क्रॉस, और जुलाई से नवंबर 7 में रुड़की एंड मेरठ में क्रॉस। ये प्राइमर्स जो कि स्पेसिफिक थे टारगेट लोकेशन के लिए वो चूज किए गए। लोकस था SD1 जीन का, फर्स्ट राइस का फर्स्ट क्रोमोसोम में लॉन्ग आर्म पे जीन था। प्राइमर SD1 फॉरवर्ड और SD1 रिवर्स यूज किया गया। फिर दूसरा प्राइमर यूज किया HF एंड HR, मोना एट ऑल ने डिस्कवर किया, वो प्राइमर यूज किया गया। XA21 के लिए जो लिंक प्राइमर प्लेयर यूज किया गया, PTA248 यूज किया गया जो कि 11th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे था। XA13 प्राइमर वाज जीन ऑन 8th क्रोमोसोम लॉन्ग आर्म, प्राइमर वाज RG136। XA5 वाज on 5th chromosome long arm, primer was RG556. For amylose and aroma, primer were used Duvexia and RM190, and for aroma, primer was RM42. Primer pair were polymorphic in the parents. Primer for XA13 is caps and polymorphic in 2 to 3% SFR, while XA13 was to be restricted with him first. इसको restrict किया गया क्योंकि ये polymorphism show नहीं कर रहा। ये जीन्स का नाम है XA21 जीन, XA13, SD1, amylose and aroma.
इनके कौन कौन से लिंक्ड मार्कर थे, लिंक्ड मार्कर का ये नाम है, कौन से क्रोमोसोम पे सिचुएशन थे, उनकी सिचुएशन है, और 11th शॉर्ट आर्म, 8th क्रोमोसोम लॉन्ग आर्म, फर्स्ट क्रोमोसोम लॉन्ग आर्म, फर्स्ट क्रोमोसोम लॉन्ग आर्म, 6th क्रोमोसोम, 8th क्रोमोसोम. Primer for SG1 XA21 has been polymorphic in 1% agarose, while XA13 was polymorphic in 2.5 to 3% SFR. XA13 gene is capped marker, which showed polymorphism when amplified PCR product is cut with specific restriction endonuclease. XA13 जीन का कैप्स मार्कर था, यानी अगर उसको नॉर्मल एम्पलीफाई करवाते थे मोनोमॉर्फिक बैंड आते थे, यानी दोनों बैंड का साइज बराबर था. लेकिन जब उसको HA हिंद फर्स्ट नाम के रेस्ट्रिक्शन एंडोनुक्लियस ट्रीट करते थे, तब वो XA13 जीन एम्पलीफिकेशन के बाद पॉलीमॉर्फिज्म शो करता था. ये XA21 जीन का पॉलीमॉर्फिज्म है विद इन PR106 P2 एंड टाइप 3. P2 के अंदर 1000 बेस पेयर का बैंड दे रहा था, और टाइप 3 यानी देहरादून बासमती में ये 650 बेस पेयर का बैंड दे रहा था. कैप्स मार्कर RG136 रिलेटेड टू XA13 जीन आप दे सकते हो P2 और टाइप 3 में बिल्कुल बराबर साइज का था, कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं थी. पर जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट किया हिंद फर्स्ट से, तो PR106 P2 प्लांट में इट वाज कट at two positions in the DNA. So you got a band of 520 base pair, 450 base pair, and 130 base pair. While in type 3, you got a band of 970 base pair and 130 base pair. So you get a complete polymorphism in both the plants with the help of Hind first restriction endonuclease. This is the Vaxi primer related to intermediate amylase content was showing polymorphism in both the P2 and type 3 plant, that is Derazil basmati and PR106 P2, while RM190 primer linked to intermediate amylase content was showing polymorphism in P2 and type 3. Fragrance gene related to RM42 was also showing polymorphism, and so is the primer related to semi-dwarfism was showing in polymorphism in P2 and type 3. So 80 F1 plants were obtained with the cross of type 3 with PR106 P2. When tested against Xanthomonas aeruginosa prevalent in Punjab, lesion length was 0.2 to 2 cm as compared to 20 to 25 cm in the different band, that is type 3 Deodhani Basmati. F1 was crossed with type 3 to get 310 BC1 F1 seeds. आप देख सकते हैं F1 प्लांट में यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल रही है. क्यों मिल रही है? क्योंकि F1 जो जनरेशन होती है उसमें डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करता है. XA21 is a dominant gene, so XA21 gene is expressing here. While in type 3, you can see the leaf is yellow, it dries because it does not have resistance against bacterial blight. This is the picture of 10 leaves of BCA1F1 plants showing resistance. BCA1F1 plants are showing resistance, that is due to XA21 gene, while type 3 not showing resistance, while PR106P2 is showing more resistance because it is self as well as it has 3 genes, that is XA21, XA13 and XA5. Screening of BCA1F1 was done in the field. This is the picture. Then 310 BCA1F1 generated 20 BCA1F1 plants were heterozygous or back cross with type 3 to get 956 BC2F1. उससे 956 BC2F1 जो सीड मिले उससे 802 BC2F1 plants established हुए, जिसमें 32 BCA1F1 plants heterozygous for all the 3 genes were selected and grown at CRI Odisha. 200 seeds from each selected plant were sown and 150 plants were transplanted, giving rise to 4,852 BC2F2 families. 4,852 BC2 progenies were grown in 80 lines with all the 3 genes, most in homozygous conditions, and out of 80 lines, 16 progenies with type 3 were selected for background profiling. Screening of BC21 in the field for bacterial bite resistance, this is the picture. Polymorphism STM marker linked with XA21 gene linked with PR106P2 and type 3 is showing in the figure. These are the panicle length of type 3 basmati and BC2F1 plants and PR106P2. This is PCR profile of marker PTA248 that is linked with XA21 gene. ये पहला P2 का मार्कर है PR106P2, दूसरा है टाइप 3 का. हमें BC2F3 में कौन सा प्लांट चाहिए? होमोजाइगस प्लांट. हम कौन सा प्लांट सेलेक्ट करेंगे जिसमें डीएनए बैंड PR106P2 जैसा हो? तो we will select this plant, 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 we will select this plant. तो इन प्लांट्स को हम सिलेक्ट करेंगे. we will select this plant, we will select this plant. जो प्लांट सेल्फ हो गए इनको हम रिजेक्ट करेंगे. जो प्लांट हेटेरोजाइगस है उनको भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें
BC2F3 में कौन से प्लांट चाहिए? वो प्लांट चाहिए जो कि होमोजाइगस हो चुके हैं एक्सेट 21 जीन के लिए। ये BC2F3 प्रोजेनीज में एक्सेट 21 का लिंक मार्कर है P2A248 का। दिस इज अगेन PCR प्रोफाइल ऑफ मार्कर P2A248 लिंक विद एक्सेट 21 जीन। इसमें भी हम कौन से प्लांट सेलेक्ट करेंगे? ये वाला प्लांट सेलेक्ट करेंगे, फिर ये वाला प्लांट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ये सब P2A248 का प्रोफाइल है। Now, PCR profile of marker RG130 is related to XA13 gene. This is profiling of P2, that is the profiling of Dehraduni basket type 3. हमें कौन सा प्रोफाइल चाहिए? P2 वाला प्रोफाइल चाहिए क्रॉसिंग के बाद, क्योंकि BC2 कौन सा चाहिए? होमोजाइगस। होमोजाइगस कौन सा है? ये प्लांट होमोजाइगस हो गया, हम इस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। ये प्लांट होमोजाइगस है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये प्लांट होमोजाइगस हो गया, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये प्लांट होमोजाइगस हो गया, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये प्लांट होमोजाइगस, इसको सेलेक्ट करेंगे। इन्हीं प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जो होमोजाइगस हो चुके हैं एक्सेट 13 के लिए। इधर इस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, इस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, इस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। ये एक्सेट 13 जीन के प्रोफाइलिंग है। इस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, इस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। नाउ पीछे प्रोफाइल एच मार्कर रिलेटेड SD1 जीन। SD1 जीन में कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ये P2 का प्रोफाइल, ये वाले प्लांट्स, ये वाला प्लांट, ये वाला, जिनके बेंडिंग पैटर्न में ऊपर बैंड्स आ रहे हैं, वो वाले, क्योंकि वो होमोजाइगस हो चुके हैं। जो हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये हेटेरोजाइगस है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इनको रिजेक्ट करेंगे। देन PCR प्रोफाइल ऑफ H मार्कर रिलेटेड SD1 जीन। इसमें भी वो प्लांट जो जिसका P2 की तरफ बेंडिंग प्रोफाइल है, यानी जिनका ये ऊपर बैंड है, दैट इज वो सेमी ड्वार्फ हो चुके हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। देन PCR प्रोफाइलिंग ऑफ SD1 RM42 Vexi RM190 linked with semi-dwarfism, fragrance, intermediate amylose content in 16 selected BC2F3 progenies. 16 progenies के अंदर सबका सिलेक्शन करेंगे हम। After that, we will use SSR marker for background recovery. Foreground recovery हमने कर ली, यानी हम एक्सेट 21 प्लांट्स, ऐसे प्लांट सेलेक्ट कर लिए BC2F3 में जिनके अंदर एक्सेट 21 भी है, एक्सेट 13 भी है, सेमी ड्वार्फिंग भी है, होमोजाइगस कंडीशन में भी है। पर उसके अंदर कितने DNA के बैंड्स, SSR मार्कर के बैंड टाइप 3 की तरह पोर्शन को शो कर रहे हैं देहरादूनी बासमती, हम उन प्लांट को सेलेक्ट करेंगे। सो फॉर दैट 209 SSR मार्कर uniformly spread over 12 chromosomes of rice was selected based on the link maps of Tamniak et al., Akagi et al., Garland et al., and McCouch et al. These markers were tested for palliative polymorphism between type 3 and PR16P2, and 209 out of 209 markers, 95 markers, that is 45% markers showed polymorphism. इन polymorphism वाले मार्कर को यूज किया गया on 16 BC2F3 lines in basmati type grains and having XC21, XC13, SD1 gene. उसके बाद उनकी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग की गई। Out of these lines, 13 lines were homozygous for XC21, 12 lines were homozygous for XC13, and 7 lines shows absence of XC genes, which was responsible for intermediate amylose content, so those was rejected. So this is the map position of 95 microsatellite marker. Microsatellite marker ने राइस के 12 क्रोमोसोम पे कहाँ का सिचुएशन है, उस सबकी मैप पोजीशन है। On and these molecular markers, microsatellite which were used was RM3, RM4, RM11, RM17. These are R means rice microsatellite markers. कौन कौन से प्लांट सेलेक्ट करेंगे? P2 के टाइप वाले, उन प्लांट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ये माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स सारे। बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग में हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे वो जीन्स फॉरग्राउंड में तो हमें P2 वाले आ जाए और देहरादूनी बासमती में टाइप 3। तो इसमें ये जो प्लांट है टाइप 3 वाला RM212, ये प्लांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले दो। इसमें कौन से प्लांट है? तो सब होमोजाइगस हो चुके फॉर टाइप 3 कैरेक्टर्स। हमें इस तरह के प्लांट चाहिए। फॉरग्राउंड में तो जिन्होंने शो किया था XC21, XC13 SD1, और बैकग्राउंड में जो शो करे टाइप 3 कैरेक्टर्स होमोजाइगस, उन प्लांट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखो नीचे टाइप 3 कैरेक्टर्स की तरह सारा कैरेक्टर टाइप 3 बासमती की तरह आ गया, इनको हम सेलेक्ट करेंगे। इनका जो ये कैरेक्टर टाइप 3 के लिए, सो दे विल बी रिजेक्टेड। RM242, RM247, RM273, RM279, RM197, RM279, ये सारे माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स यूज किए जा रहे हैं। ये देखो RM279 का बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग बिल्कुल टाइप 3 की तरह बासमती की तरह सारा हो गया है बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग में। ये अभी भी हेटेरोजाइगस है और इसके अंदर अभी P2 वाला कैरेक्टर है, तो इस प्लांट को हम रिजेक्ट करेंगे। RM330 with P2 and type 3 type characters,
RM338, RM341, RM339, RM348, RM415, RM421, RM527. Then after that we use ISSR, इंटर-स्पेसिफिक सीक्वेंस रिपीट मार्कर्स, उनको हम यूज किया हमने। उसमें भी हमने फिर चेक किया प्रोफाइलिंग, देहरादूनी बासमती की तरह के प्रोफाइलिंग वाले प्लांट सेलेक्ट किए, और वो सारे प्लांट्स जो कैरेक्टर देहरादूनी बासमती की तरह ले रहे थे, जिसमें ये बैंड देखो, या 3 बैंडिंग पैटर्न है और ये बिल्कुल कॉमन है, 3 बैंडिंग पैटर्न सारे प्लांट्स के। तो इन प्लांट्स को हम सिलेक्ट करते हुए आगे चलेंगे ISSR मार्कर्स। Then genotyping of planting was done. Then graphical genotype of the 16 selected progenies for all the 12 linked markers using different SSR marker was used. ये जो रेड पोर्शन देख रहे हैं, ये रेड पोर्शन उन प्लांट्स का है जिनके अंदर XA21 जीन आ गया है, XA5 जीन आ गया है, सेमी डॉर्फिंग जीन आ गया है। ये जो ब्लू पोर्शन है, ये PR1P2 का प्लांट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनके अंदर ब्लू पोर्शन में XA21, XA13 और SD1 वो जीन्स हैं, सेमी डॉर्फिंग जीन। ये देखो, ये शो कर रहा है SD1 जीन, ये SD1 जीन की प्रेजेंस है। आप SD1 जीन को लेके चलोगे तो ये पोर्शन तो आना ही आना है, बिकॉज इट इज ड्यू टू फैक्टर कॉल्ड लिंकेज ड्रैग। लिंकेज ड्रैग की वजह से वो पोर्शन आएगा। और जो कुछ पोर्शन है जो बीच में अलग तरह के दिखा रहा है, दैट इज हेटेरोजाइगस, यानी उसके अंदर DNA का दोनों पोर्शन है। XA21 मतलब टाइप 3 बासमती का पोर्शन है और PR106 दोनों तरह का पोर्शन। तो दीज आर द ग्राफिकल जीनोटाइपिंग। ये देखो वैक्सी जीन इंटरमीडिएट अमाइलोस कंटेंट, उसके कैरेक्टर्स वाले प्लांट सेलेक्ट करेंगे, यानी बासमती वाले टाइप 3 वाले रेड वाले। देन दिस इज XA21 जीन। XA21 gene position is here, and that DNA portion which come with XA21 gene is due to linkage drag. ये वाला बीच वाला पोर्शन है, that is heterozygous। तो हमारे पास देखो पूरा पोर्शन ज्यादातर हो गया रेड पोर्शन, यानी देहरादूनी बासमती के कैरेक्टर वाला पोर्शन हो गया। ब्लू पोर्शन वो है जिसके अंदर हमारे XA21 जीन आया PR1P2 में, और जीन अपने साथ आएगा तो लिंकेज ड्रैग करके अपने साथ PR1P2 का भी कुछ DNA पोर्शन लेके आएगा। This is the dendrogram of parents and selected BC2 F3 progenies. This is the height. अब आप देख सकते हैं देहरादूनी बासमती का पौधा जो कि 6 फीट ऊंचा था, सेमी डॉर्फिंग जीन की वजह से उसकी हाइट घटा के हमने 3.5 फीट कर दी थी, और उसकी हाइट 3.5 फीट कर दी थी, फ्रॉम 5 more than 5.5 to 6 feet. He is my guide, प्रोफेसर HS धालीवाल, जिनके साथ मैंने काम किया था इस प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग माय PhD फ्रॉम IIT रुड़की डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा PhD का काम है, जो कि मैंने IIT रुड़की में डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी में किया था। इस प्लांट की हाइट देखो, ये देहरादूनी बासमती का ओरिजिनल पौधा है, जिसकी हाइट करीब 5.5 से 6 फीट थी, और अब हाइट 3.5 फीट से आसपास रह गई है। ये मेरे जूनियर है, वो जो लैब में काम करता था IIT रुड़की में। बोथ आर वर्किंग इन इंडिया इन डिफरेंट लैब्स। शी इज अंजलि and this is Satish Chaudhary, and he is Professor HS Dhaliwal. He is Vice Chancellor of Veterinary University at this time. अब BC2 F3 पिरामिड लाइंस जिसमें हायर यील्ड शो हो रही है, देखो आप देख सकते हैं खेत की फोटो है जहां पर हमने जीन्स पिरामिड करके टेस्टिंग किया तो उसमें बहुत ज्यादा यील्ड नजर आई, और नॉर्मल जो प्लांट्स थे उसके अंदर लो यील्ड है और वो फील्ड में अभी भी गिर रहे थे। ये देखो हायर यील्ड के प्लांट्स है, हायर प्रोडक्शन है, हायर प्रोडक्टिविटी है, और ये देखो लो यील्ड के प्लांट्स है जिसके अंदर यील्ड बहुत कम है। फिर हमने BC2 F3 प्रोजेनीज के अंदर लिंक मार्कर्स और हाइट के हिसाब से उनकी प्रोफाइलिंग करी, उनके लेंथ विड्थ रेशियो निकाला। तो हमें कुछ लाइंस थी जिनकी लेंथ ओरिजिनल टाइप 3 प्लांट बासमती के सीड से ज्यादा मिली, दैट इज ड्यू टू हाइब्रिड विगर, कैरेक्टर कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। फील्ड में हमने लगाया तो टिलर नंबर बहुत ज्यादा मिले हमको, टिलर नंबर बहुत बढ़ गए थे। टिलर नंबर बासमती बढ़ने से क्या है, टिलरिंग कैपेसिटी बढ़ गई और उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया। जब हमने लाइंस के सीड को कुक करके देखा, इलॉन्गेशन वाज आल्सो मोर देन टाइप 3, यानी हाइब्रिड विगर की वजह से कुछ ऐसी लाइंस थी जिसमें जो बीज जो चावल पकता था, पकने के बाद उसकी लेंथ ओरिजिनल टाइप 3 से भी ज्यादा होगी, दैट इज करेक्टेड ड्यू टू हाइब्रिड विगर। दिस इज PCR एनालिसिस ऑफ पेरेंटल लाइंस एंड फोरग्राउंड सिलेक्शन इन BC2 F5 प्रोजेनी का फोरग्राउंड सिलेक्शन किया गया, तो पाया XA21 gene was become homozygous in most of the plants. Same was the case with XA13 gene. Same was the case with SD1, with waxy genes and fragrance genes.
तो इन पांचों कैरेक्टर के साथ यानी XA21, XA13, SD1, इंटरमीडिएट अमाइलोज काउंटर फ्रेगनेस जीन के साथ हमने इस मटेरियल को रजिस्टर करवाया NBPGR में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में, और हमें सर्टिफाई किया उन्होंने 2011 जुलाई 2018 को सर्टिफाई किया दैट मटेरियल ऑफ पैडी developed by Deepak Rajput, Achal Dhaliwal, and some of my juniors has been registered by Plant General Plan Registration Committee of ICAR on July 18, 2011. The material was registered there, and the material has been deposited in NBPGR, New Delhi. Conclusion is that traditional basmati variety is also known as Dehraduni basmati, is tall, photosensitive, and highly susceptible to bacterial blight. Two genes, XA20 and XA13, for bacterial blight resistance, and a green revolution dwarfing gene SD1 has been pyramided in the type 3 basmati using microresistor selection technique while retaining its acquisite quality characteristic, including low amylose content and aroma. The semi-dwarfing gene with resistance to bacterial blight and higher tilting capacity was giving approximately 20% higher yield than the tall parental type 3 variety. मतलब हमने जो काम किया उस काम की वजह से देहरादूनी बासमती की हाइट हमने घटा दी, उसमें XA21, XA13 जीन जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस के थे वो ट्रांसफर कर दिए, SD1 जीन भी डाल दिया, तो अब प्लांट की हाइट कम हो गई। हाइट कम होने से वो प्लांट जो फील्ड में नहीं गिरता, और उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस जीन XA20 और XA13 भी है, तो उसकी वजह से प्लांट में बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस भी डेवलप हो गई है। इंटरमीडिएट का माइलोस कंटेंट है, तो चावल जब बनता है तो खुला खुला बनता है, लीनियर इलॉन्गेशन ऑफ ग्रेन्स होता है, फिर फ्रेग्रेंस ऑफ जीन्स भी इंटैक्ट है, तो उसमें 2-acetyl-1 पैरेलल भी बहुत बनता है, और उसकी वजह से फ्रेग्रेंस भी बहुत आती है। मटेरियल को हमने NBPG और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में हमने डिपॉजिट कर दिए। These are the abstract of paper posters presented in national conference and symposia. These are the abstract of posters presented in international conference symposia related to this work. These are the paper in national journals related to this work, and these are the papers published in international journals related to this work. This is the work in which we have transferred XA21, XA13 along with the semi-dwarfing gene in Dehraduni basmati using marker-assisted selection technique. And these are the references which I used in this in my PowerPoint presentation. Thanks. This is the presentation. This. Now, if you want to have any question, it's open for all. Thank you, sir. Well, thank you, Dr. Gunjit.